آج کا خداوند کا کلام جو ہے وہ ہم خداوند کے روح کے وسیلہ سے سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم خداوند کے کلام میں سے آیات دیکھیں گے جو آج خدا نے روح القدس کے وسیلہ سے بتایا سکھایا۔ وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ گناہ کر کے اپنی زندگی میں کانٹے اپنے رستوں کے لیے بوتے جاتے ہیں، اپنے پاؤں کے نیچے جہاں ہم نے چلنا ہے وہاں پر ہم کانٹے کوئلے گرم کوئلے رکھتے جاتے ہیں، اور اپنی زندگی میں سے روشنی کو دور کرتے جاتے اور اندھیرے میں اپنے آپ کو بند کرتے جاتے ہیں، اور دلدل میں ہم گھستے جاتے ہیں، دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں اور بیماریوں میں گھرتے جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب ہم نیکی کرتے ہیں، راست بازی کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق چلتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں نور کو اندھیرے کو دور کرتے جاتے اور نور کو اپنی زندگی میں لیتے جاتے ہیں، سکون، اطمینان، خوشی، اور اپنے پاؤں کے نیچے پھولوں کو لے آتے ہیں، اور خوشبو، مہک، سکون ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ یہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں دوسرا سیموئیل اس کا 12واں باب اس کی 9ویں آیت میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اور اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ آمین۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ داؤد بادشاہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب داؤد بادشاہ نے ہتی اوریا کی بیوی کو دیکھا تو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی کو لے لیا۔ جب اس نے یہ گناہ کیا تو وہ یہ جانتا ہوگا کہ یہ اب ایک خوشی میری زندگی میں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم جو گناہ کرنا چاہتے ہیں یا جو گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہم اس لیے اپناتے ہیں یا گناہ کرنے کا فیصلہ اس لیے کر لیتے ہیں یا بے دھڑک بغیر جھجکے فوراً گناہ کرنے کے لیے ہم لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ گناہ کریں گے یا کوئی فلاں گناہ کریں گے تو اس میں لذت، مزہ اور خوشی ہے۔ یہ ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی خوشیوں میں نہیں پڑتی، خوشیاں ہم سے چھینی جاتی ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ یہاں پر داؤد بادشاہ نے بھی جب اس عورت کو دیکھا تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس کے شوہر کو مروا ڈالتا ہوں اور اس کی بیوی رکھ کے خوب اس کے ساتھ میں اپنی اچھی زندگی کے لمحات گزاروں گا، اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کروں گا، اور جو میری زندگی میں کمی ہے خوشیوں کی، میں اس کے کمپنی میں اس کے ساتھ وہ خوشیاں بانٹوں گا۔ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ سب خوشیاں لینے کے لیے کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے، سکون میں رہے اور اچھی زندگی دیکھے۔ ہم دیکھتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے، سچائی کچھ اور ہے۔ ہم اس سچائی کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے جب ہماری آنکھیں گناہ کے پردہ کی وجہ سے بند ہوتی ہیں اور گناہ کی وقتی لذت کے لیے ہم لوگ اس سچ کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک کر اپنے قدموں کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں بہت مزہ آنے والا ہے۔ وقتی داؤد کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا کہ جو اس نے خواہش کی، جو اس نے ارادہ کیا، جو اس کی مرضی تھی وہ اس نے پورا کر دیا، وہ اس کی زندگی میں ہو گیا۔ لیکن
खुदावंद जो हैं वो सब कुछ देख रहे होते हैं। हम इसी बाब की 12वीं आयत में पढ़ूंगी। लिखा है, क्योंकि तूने तो छुप कर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूंगा। जब गुनाह किया जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये हम छुप के कर रहे हैं और किसी को नजर नहीं आ रहा। इस आयत में मैं सिर्फ ये लफ्ज, इस आयत को इसीलिए पढ़ा ताकि मैं ये वर्ड बता सकूं, ये लफ्ज बता सकूं कि क्योंकि तूने तो छुप कर ये किया। हम लोग जब अपनी लज्जत, अपनी ख्वाहिशें, अपनी मर्जियां पूरी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हैं, जो कि गलत है, तो वो हम छुप के करते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी को नहीं नजर आया, ना मेरे माँ बाप को, ना मेरी बीवी को पता चला, ना मेरे शौहर को पता चला, ना मेरी औलाद को पता चला, ना मेरे बहन भाइयों को पता चला, ना मेरे अजीजों को पता चला। जो गुनाह मैं कर चुका, उस गुनाह के मैंने लज्जत हासिल करी, किसी को नहीं पता चला। लेकिन उसने तो छुप के ये इरादा किया, और हम भी छुप के ये इरादा करके ये छुप कर गुनाह कर लेते हैं, लेकिन इसको खुदावन देख रहे होते हैं। इसी बाब की 14वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा है, तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। आमीन। गुनाह में लज्जत ढूंढते हैं, वक्ती मजा आता है, बहुत खुशी होती है। ये हमारा झूठ पे जो हमारी बुनियाद है, हम ये समझते हैं, झूठी बुनियाद हमारे अंदर है। झूठ पे हम लोग सोचते रहते हैं और ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन खुदावंद देख रहे हैं। वो छुपे, जो हम छुपे हुए काम करके मजे और लज्जत लेते हैं, खुदावंद उसको देख रहे हैं। वो ख्वाह किसी भी किस्म का गुनाह क्यों ना हो, सिगरेट पीना, नशा करना, किसी भी तरह का किसी भी तरह की अय्याशी करना, किसी को धोखा देना, उसका पैसा लूट लेना, कोई भी गुनाह करना हमारे पास। उस वक़्त तो पैसा किसी को फ़रेब से चोरी करके, धोखा देके पैसा आप ले लोगे, ढेर सारा उससे शॉपिंग कर लोगे, लालच करके किसी का पैसा आप ले लोगे जो आपकी अपनी मजदूरी नहीं है, जो ना हक है, वो आप ले लेते हो। वक्ती तो आप उस पैसों से बहुत मज़ा लोगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लोगे, अपने आप को सहूलतें दे दोगे, अपने घर में आराम आसाइश की चीज़ें ले आओगे। लेकिन ये सब कुछ खुदावंद देख रहे हैं, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि देखो कि जो बीवी वो लेके आया था, उसमें से जो औलाद पैदा हुई, खुदा ने वही मार डाली। यानी जो गुनाह उसने किया, जो गुनाह वो कर चुका, छुप के कर चुका, लेकिन खुदावंद से नहीं छुपा हुआ था, तो खुदावंद ने उसकी जिंदगी में उसको ये सजा दी। तो गुनाह की वजह से अब हम इसको इस तरह से सीखते हैं, समझ लें कि एक हमारी जिंदगी जो एक कमरा है, बंद कमरा, जिधर आप दरमियान में खड़े हो। अब हम देखते हैं कि दाऊद वहां पर खड़ा है। दाऊद ने ये गुनाह किया, और उसी वक्त जब उसने ये गुनाह किया, खुदावंद ने उसी वक्त देख लिया, और खुदावंद ने फैसला किया कि अब मैं तुझे सजा दूंगा। तो समझ लो दाऊद और उसकी ये जिंदगी जो है वो उस कमरे में खड़ा है, और अब उस कमरे में खुशी की बजाय क्या है, लाश पड़ी है, वो भी उसके अपने पेलौठे बेटे की, जो उस औरत से पैदा हुआ था। अब उस खुशी की बजाय उसकी जिंदगी में लाश, मातम, रोना है। तो किसकी वजह से हुआ? गुनाह की वजह से। हम इसी कलाम को मजीद खुदावंद के कलाम में से देखते हुए सीखेंगे। लूका की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए, और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। आमीन। अब हम ये देखते हैं कि एक मर्द जो है, एक आदमी जो है, वो मफलूज है, और वो चारपाई पे पड़ा हुआ है। जो मफलूज होता है वो कुछ भी अपना नहीं हिला सकता, वो अपना कोई बदन का हिस्सा नहीं हिला सकता, वो अपने लिए कोई काम नहीं कर सकता, वो उठ नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो चल फिर नहीं सकता, अपने छोटे छोटे काम भी नहीं कर सकता। वो किसी और पर डिपेंडेंट हो जाता है, वो दूसरे के आसरे पे हो जाता है, वो मोहताज हो जाता है। अब ये मोहताजी उसकी जिंदगी में कहाँ से आई, हम ये देखते हैं। 20वीं आयत में पढ़ूंगी। उसने उनका ईमान देख कर कहा कि ए आदमी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। आमीन। अब वो जो आदमी है, जो मफलूज है,
जो हिल नहीं सकता। ये क्या छोटा दुख है? ये छोटी तकलीफ है? ये छोटी बीमारी है? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इस बीमारी और इस जिंदगी, जिल्लत भरी जिंदगी में रहना, ये मोहताजी वाली जिंदगी उसके पास कहाँ से आई? वो क्यों इसमें पड़ा हुआ है? जब खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आए तो यीशु मसीह ने कहा, ए आदमी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इससे साफ जाहिर है कि गुनाहों की वजह से, गुनाह की वजह से उसके अंदर ये बीमारी आई, ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी आई और वो अब इसी में रहता, इसी में जीता रहा। लेकिन जब वो गुनाह करता होगा तो इन्हीं हाथों पांव के साथ गुनाह करता होगा, इसी जिस्म को लेकर गुनाह करता होगा, इसी जिस्म में उस गुनाह की लज्जत को लेता रहा होगा और सोचता होगा कि मुझे किसने पूछना है, मुझे कौन पूछेगा, इसका कौन सा नतीजा बुरा होगा, मुझे तो इस वक्त अच्छा लग रहा है, मैं तो इस वक्त ऐश कर रहा हूं। हम जो करते हैं वो खुदावंद देखते हैं और हम इधर भी देख रहे हैं कि उसने जो गुनाह किए, यीशु ने कह दिया कि तूने जो गुनाह किए हैं इस वजह से है, अब तुझे इस गुनाहों से मैं माफी देता हूं क्योंकि मैंने तेरा ईमान देख लिया और तू अब शिफा पा। तो जो गुनाह है वो हमारी जिंदगी में ऐसा करता है। आगे हम देखते हैं मजीद खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की अंजील, उसका 8वां बाब, उसकी 3री आयत। और फक्की और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, आमीन। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बयान करना चाह रही हूँ कि एक औरत जिना करती थी और जिना करके जब वो पकड़ी गई तो उस औरत को लिखा है और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, बीच में खड़ा कर दिया। और हम अगर इसे पहले देखें तो लिखा है 2री आयत में, पहली आयत में, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। आगे है 2री आयत, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। इसका मतलब साफ जाहिर है कि यीशु वहां पर अकेले नहीं थे, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे। लिखा है सब लोग, बहुत सारे लोग थे और जो खुदावंद यीशु मसीह से तालीम सुन रहे थे और उसके अलावा भी बहुत से लोग होंगे। तो जब उस औरत को जिना की वजह से सब लोगों के बीच में खड़ा किया गया होगा तो उस औरत की कितनी बेइज्जती हुई होगी, कितनी जिल्लत, कितनी रसवाई उसने उस वक्त उठाई होगी। जब वो जिनाकारी है या उससे पहले जिना करती रही तो उसने ये बात नहीं सोची होगी कि जो गुनाह मैं कर रही हूं ये एक दिन सबके सामने आ जाएगा और मुझे सबके सामने कहा जाएगा कि ये जिना करते हुए पकड़ी गई है और इसका ये गुनाह है कि ये जिना करती है। और उसने ये सोचा नहीं होगा कि मेरा ये जिना जो है सबके सामने आ जाएगा और मुझे बहुत से लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी। अब हमने ये 3 हवाले जो हैं खुदावंद के कलाम में से सुने और सीखे रूहुल कुद्स के वसीला से, तो अब हम इनसे हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। हर एक शख्स अब ये सोचे कि उसकी जो जिंदगी है वो एक कमरे में, एक कमरा है और वो उस कमरे में खड़ा है। जैसा कि मैंने दाऊद से शुरू किया कि जब उसने अपनी हत्ती उरिया की बीवी को लिया तो उसने ये सोचा कि मैं अपनी अब अच्छी जिंदगी उसके साथ शुरू करूंगा, लेकिन उस गुनाह की वजह से जो वो खुशी लेना चाह रहा था, उसी गुनाह की वजह से खुदा ने उसके आगे एक लाश उसी के अपने बेटे की रख दी जहां पे रोना था, दुख था। इसी तरह जब हम अपनी जिंदगी को देखते कि जब हम कोई एक काम बुरा करते हैं, गुनाह करते हैं, खुदा के कलाम के खिलाफ चलते हैं, तो जब भी हम कोई गुनाह छुप कर लेंगे लेकिन खुदावंद उसको देख रहे होंगे, तो हम उस कमरे में जहां पर हम हैं, यानी जो हमारी जिंदगी है, हमने जिसको भी काटना है, जहां हम जिंदगी में रह रहे हैं, हम अपने आप को दरमियान में खड़ा कर लें।
उस कमरे के दरमियान में हम अपने आप को खड़ा कर लें। जब हमने अपनी ज़िंदगी में एक गुनाह किया तो उसके इवज़ उसी वक़्त खुदा का इंसाफ जो वो क्या करेगा, हमारी ज़िंदगी में वहाँ पर ही एक दुख लाकर रख देगा, एक लाश हमारे अपने की रख देगा जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर हमने देखा कि जो ज़िनाकार औरत है उसकी बेइज्जती, रुसवाई और ज़िल्लत हुई बहुत से लोगों में। तो अगर हम देखें कि हम वहाँ पर खड़े हैं और हमारे बहुत से लोग जो हैं वो अब हम पर ताना कस रहे हैं, हमें बातें सुना रहे हैं, हमें ज़िल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी है, वो हमें ऐसी नज़रों से देख रहे हैं और हमें शर्मिंदगी रहती है, और उस कमरे में बहुत से लोग हैं और वो हमें गुनाहगार की तरह पर देखकर हमारी नज़रों को हमारी तरफ ऐसी नज़रों से देखते हैं कि हमें शर्मिंदगी होती है, और वो कहते हैं ये चोर है, ये डाकू है, ये जिनाकार है, ये शराबी है, ये गंदा है, ये बुरा है, ये बदकार है, ये गुनाहगार है, ये इस तरह का है, ये उस तरह का है। तो जब हमारे इस कमरे में जो हमारी ज़िंदगी है उसके अंदर लोग ऐसे खड़े हो जाएं और वो सारा टाइम इस तरह से आपको देखें तो वो कमरा आपको घुटन महसूस होना शुरू हो जाएगी। आपके अपने प्यारे की लाश भी उधर ही है। और जब इसी तरह हम बहुत से गुनाह करते जाते हैं, क्योंकि कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं गुनाह नहीं करता। अगर आप छोटा गुनाह करोगे तो खुदावंद आपको सज़ा ज़रूर देंगे, बेशक वो सज़ा दुख और तकलीफ, परेशानी जो है वो छोटी हो सकता है आपने छोटे छोटे गुनाह करके अपने लिए उसी ज़मीन पर जिस कमरे की मैं बात कर रही हूँ उधर कांटे बोना शुरू कर दिए। लेकिन जब आप उसके ऊपर चलोगे, उस ज़िंदगी में, उस कमरे में चलोगे, तो वो कांटे आपको रोज़ाना चुभते रहेंगे, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी से, आपके कमरे में से नहीं गए, वो आपके गुनाह की वजह से आपने बोए हुए। आपका कोई अजीज़ मर जाएगा तो आप खुद जब तक जीते रहोगे आपको इसका दुख सारी उम्र झेलना पड़ेगा। और मफलूज से हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई बीमारी आ जाए, कोई दुख आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम अपने मोहताज हो जाएंगे, हम तकलीफ उठाएंगे, हम रोएंगे, उस बीमारी में हम तकलीफ उठाएंगे, दर्द उठाएंगे। और इस तरह से हम जब बहुत गुनाह करते जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी के इस कमरे में कोयले, दहकते हुए कोयले भी रखते हैं, हम कांटे भी बोते हैं। और जो रोशनी, जो खुदा ने पैदाइश से हमें जो रोशनी बख्शी है, हमारी ज़िंदगी में आराम और सुकून है, हम उन गुनाहों की वजह से जो हम खुद डिसाइड करते हैं अपनी लज्जत के लिए, हम उसको अपनी ज़िंदगी में गुनाहों को ला के अपनी ज़िंदगी से रोशनी को दूर करते जाते हैं। और उस कमरे में, उस ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी है उसमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होता है। और जब अंधेरा होगा तो सिर्फ और सिर्फ आप ठोकर खाओगे, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। नीचे कोयले हैं, कांटे हैं, अंधेरा है, बीमारी है, आपका अपना कोई अजीज़ जो है वो मर जाएगा, और साथ में बहुत से लोग हैं जो आपकी ज़िल्लत और रसवाई करके आपके ऊपर ताना कसेंगे, आपको घसीटेंगे, जैसे कि उस औरत को घसीट कर लाए, खींच कर लाए खुदावंद के पास, इज्जत के साथ पालकी में उठाकर नहीं थे लाए। तो आपको ये ज़िल्लत और रसवाई उठानी पड़ेगी। और इसका जो वजह है वो हम लोग खुद हैं। और जब हम गुनाह कर करके अपनी मुरादों को और खुशियों को और ख्वाहिशों को गुनाह के वसीला से पूरा करना शुरू करेंगे तो खुदावंद हमसे वो ख्वाहिशें भी छीन लेंगे। और जब हमारी वो ख्वाहिशें नहीं पूरी होंगी, हमारी मुरादें नहीं पूरी होंगी, क्योंकि ये गुनाह की सज़ा है, तो हमारा चेहरा लटक जाएगा, हमारा दिल बुझ जाएगा, हमारी खुशी जाती रहेगी, और हम और मायूसी के अंधेरों में और दलदल में अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल बंद और कैद होकर रह जाएंगे। तो हम अपनी ज़िंदगी में खुद कांटे बोते हैं, खुद अपनी ज़िंदगी में बीमारियां लेकर आते हैं, ज़िल्लत और रुसवाइयां लेके आते हैं। हम इसका जिम्मेदार खुदा को ना बनाएं। हम लोग जब अपनी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां और बीमारियां और अपने अजीज़ों की जुदाइयां देखते हैं, और जब हमारे ऊपर गुनाह की वजह से बीमारियां और तरह तरह की परेशानियां आती हैं, और गुनाह की वजह से जब हमारे हालात तंग होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुदा बरकत भी
छीन लेते हैं, तो हमारे पास खाने पीने के लिए भी नहीं होता। तो जब खुदा हमारे इस ज़िंदगी के कमरे में जिधर खाना पीना भी नहीं है, अंधेरा है, कोयले हैं, दहकते हुए कोयले हैं, कांटे हैं, रोशनी भी नहीं, और सिर्फ दुख है, मातम है, और आप सिर्फ रोना है, खुदावन सिर्फ रोना छोड़ देते हैं, ये हम खुद अपनी ज़िंदगी में बोते हैं। तो हमने खुदा को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी कितनी बुरी बना के रखी है, हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, हम अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते। इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, खुदावंद नहीं हैं। पहली बात कि खुदावंद को हम ज़िम्मेदार ना ठहराएं। हम लोगों को चाहिए कि हमने जब ये खुदावंद के कलाम में से देखा और सीखा कि खुदावंद के कलाम के ख़िलाफ़ जाएंगे और हम जो झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा और इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं, जो थोड़ी देर की ज़िंदगी है, आओ खाएं पिएं ऐश करें, तो ये हमारा जुमला झूठ पर मबनी है। हम झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारा कमरा जो है, अगर आप सोचो, इमेजिन करो, तो हमारी ज़िंदगी कितनी भयानक होगी और हम किस दलदल में फंसे होंगे और फिर कोई निकालने वाला नहीं होगा जब तक कि आप यीशु मसीह के कदमों में ना आ जाओ, यीशु मसीह के सलीब पर बहाए हुए खून से अपने आप को ना धो लो। ये कमरा इसी तरह अंधेरे में, कांटों में, कोयलों में, दुखों में और लाशों में पड़ा रहेगा कि आपके इर्द गिर्द अपने प्यारों की लाशें पड़ी होंगी। एक टाइम ऐसा होगा कि हम खुद भी लाश बन जाएंगे, मफलूज की तरह, क्योंकि ये जिंदगी नहीं बल्कि ये भी एक लाश की तरह जिंदगी जीना है कि आप सिर्फ सांसें तो ले रहे हो लेकिन आप बाकी कुछ भी नहीं कर सकते, और लोग आपको इज्जत रिसवाई तो देंगे ही देंगे। आप ये सोचो कि आपकी कोई भी समाज में, लोगों के नज़रों में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको धुतकारेंगे, जहां आप बैठोगे वहां से लोग उठ के चले जाएंगे, तो आप कितना बुरा महसूस करोगे। ये सब कुछ खुदावन की तरफ से इंसाफ के साथ होता है, क्योंकि खुदा जब हमारे गुनाह को देखते हैं तो फिर खुदावन फौरन हमारे लिए जैसे दाऊद के लिए फैसला कर लिया कि तूने ये काम किया इसलिए अब तेरा बेटा मरेगा, तो खुदावन फैसला कर लेते हैं। और खुदा, हम ये भूल जाते हैं कि खुदा है और कोई हमें ऊपर से देख रहा है, वो इंसाफ करेगा, वो इंसाफ वाला खुदा है, वो जिंदा खुदा है, उसकी आंखें देख रही होती हैं, वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। हम ये नहीं जानते, नहीं समझते, इसलिए हमारा जो दिल करता है वो हम लोग करते हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में हर काम एहतियात के साथ, होशियार रहकर, खबरदार रहकर, अपने दिल को काबू में रखकर, सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ अपनी जिंदगी के फैसले करने हैं। जो कदम उठाना है आपने उसको सोचना है, क्या ये गुनाह है, क्या इससे खुदा नाराज हो रहे हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या कलाम मुकद्दस इस बात की इजाजत देता है, क्या मैं ये करूँगा तो ये गुनाह तो नहीं होगा, क्या ये बदी तो नहीं, क्या ये गलत तो नहीं, क्या मैं खुदावंद के को नाराज़ तो नहीं कर रहा। क्या जब हम अपने ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह उठते हैं तो हम खुदावंद से पूछते हैं या खुदावंद से अपनी ज़िंदगी को, अपने कामों को शुरू करते हैं, या हम काम करने से पहले खुदावंद को याद करते हैं कि खुदावंद मेरी मदद करो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि फ़लाँ जो काम है वो गुनाह है, और अगर गुनाह है आपकी नज़र में तो खुदावंद मुझे हदायत करो खुदावंद, ताकि मैं ये गुनाह ना करूं, मुझे रूहुल कुद्स का ज़ोर और कुव्वत दो ताकि मैं ये गुनाह ना कर सकूं, मुझे रोको खुदावंद, मैं परहेजगारी वाली ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, नेक ज़िंदगी, पाक ज़िंदगी, आपके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी जो यीशु मसीह ने तालीम दी हुई है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूं, ताकि मेरी जिंदगी उस कमरे की मानिंद ना बन जाए जहां पे सिर्फ अंधेरा है, कांटे हैं, दुख है, तकलीफें हैं और परेशानियां हैं, और लोग मुझे बुरी तरह देखेंगे और मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। ए खुदावन मेरी मदद करो।
تو हम जो हैं बगैर सोचे समझे अपनी ज़िंदगी का कोई भी काम कर लेते हैं। जो हमें अच्छा लग रहा होता है हम आज़ादी से करना चाहते हैं। हमें आज़ादी पसंद है। हमें नहीं पसंद कि कोई हमें रोके, कोई हमें हमें मना करे। हमें नहीं पसंद कि खुदा का कलाम हमें रोके। हमें अपनी ये ज़िंदगी जब खुदा हमें मना करते हैं कि फ़लाँ गुनाह ना करो, फ़लाँ चीज़ ना करो, ये काम गलत है, तो हमें बुरा लग रहा था। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बंद हो गई है। हमें बहुत तकलीफ़ महसूस तकलीफ़ उठानी पड़ रही होती है कि ये अच्छा नहीं है, मैं और क्या करूँ? इससे तो मैं बोर हो जाऊँगा और मैं क्या करूँ? और मेरी ज़िंदगी में क्या है? हमारी ज़िंदगी में खुदा की तालीम है, जो खुदा ने हमें दी है कि हम इसको परहेज़गारी से इस ज़िंदगी को गुज़ारें, ताकि हमारी ज़िंदगी में इस कमरे में जो हमारी ज़िंदगी है उसमें कांटे ना हो। खुदा जो कुछ भी कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी में अंधेरा ना हो, ताकि हमारी ज़िंदगी में हमारे पाँव के नीचे गरम दहकते हुए कोयले ना आ जाएं, कांटे ना आ जाएं, हमारे आगे हमारे अपनों की लाशें ना पड़ी हों, हम खुद मफलूज की तरह ना पड़ी रहें। तो खुदावन हमारी भलाई के लिए हमें मना करते हैं, लेकिन हमें ये बात तकलीफ देहक लगती है। लेकिन जब हम ये बातें तजर्बा कर चुके होते हैं और जिंदगी का एक हिस्सा गुजार लेते हैं, फिर हम एहसास करते हैं नहीं, खुदावंद का फैसला ठीक है, खुदावंद की तालीम अच्छी है, वो वाकई हमें एक अच्छी जिंदगी देते हैं। इसलिए हमने खुदावंद की बात माननी है। काश मैं ये गुनाह ना करता, आज मैं ये सारे गुनाहों की वजह से अपनी ज़िंदगी में ये सब कांटे, दुख, बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां, अपनों की लाशें और रोना अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ, तब हमें एहसास होता है। लेकिन आज खुदावंद हमें पहले वक्त से पहले ये बताना चाहते हैं कि हम ये गलतियां करने, ये गुनाह करने से पहले, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी कैद हो जाएगी कांटों में, अंधेरे में, दलदल में, तो खुदावंद वहाँ से हमें निकालना चाहते हैं। खुदावंद ने चाहा तो जो इसका दूसरा पहलू है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी के इस कमरे को रोशन फूलों से सजा सकते हैं, महक से, सुकून से, इत्मीनान से, खुशियों से। तो खुदावंद ने चाहा तो हम अगले सबत दिन पर मैं इसको रूहुल कुद्स के वसीला से बयान करूँगी। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।